Hi, this is Sunil Gupta. I welcome you back once again in my virtual classroom. This is sum number 8 from admission of partner. This sum is taken from government textbook. This is the question. This is the main solution where you will be going to get marks, and we'll be using this page for working note. Let's go back to the question. This is the question. I'll read the question. The balance sheet of Sahil and Nikhil, who share profits in the ratio of 3:2 as on 31st March 2017. Balance sheet as on 31st March 2017. These are the liabilities, right? And these are the assets. Valid adjustment. Varad admitted. So he is admitted. Who will be the new partner? This one. Varad will be new partner admitted on 1st April 2017. So you will be preparing new balance sheet as on this date on the following terms. Varad was to pay 1 lakh. Varad was to pay rupees 1 lakh for his share of capital, and he was also to pay 40,000 as his share of goodwill. So Varad will be paying rupees 1 lakh as capital, and he will be paying 40,000 more for goodwill. And here ready-made profit sharing ratio is given, so we no need to calculate new profit sharing ratio. It is already given in the sum. Old partners. Who will be the old partners? See, these two will be the old partner. Old partners decided to revalue the assets as follows. So building 1 lakh, furniture 40,000, debtors 38,000 in view of likely bad debts. That means there could be the chance of bad debt. We'll see. It was found that there was a liability of rupees 3,000 for goods in March 2017. March 2017 comes in this year only. So we'll be taking this 3,000 for current year's liability, but recorded on 2nd April. Okay. This is one of the liability which is occurred on March 2017, but it is recorded on 2nd April 2017. Students, this 2nd April 2017 comes in the next year. ये 3000 वो लायबिलिटी है जो अकर तो हुआ था करंट ईयर में, बट रिकॉर्ड हुआ है नेक्स्ट ईयर में. हम लोग को नेक्स्ट ईयर का कंसिडर नहीं करना है. फॉर द करंट ईयर दिस विल बी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. फॉर करंट ईयर के लिए ये 3000 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा. तो हम लोग इसको ट्रीट करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हम लोग देख लेंगे सॉल्यूशन में. सो लेट्स start solving the question. Okay, see, this is a revaluation account which is also known as profit or loss adjustment. All the expenses and losses are debited over here. Even if there is any decrease in the asset, will be debited. All incomes and gains are credited over here. For example, increase in the value of asset will be credited over here. This is partners capital account. This is the new balance sheet. Date is already given. This will be cash or bank balance if we need, and if you are preparing, this will be the part of working note. If you are preparing even goodwill, if you prepare goodwill account, will be the part of working note. You are not going to get marks on these two ledger accounts, but क्या है ये prepare कर लेने के बाद हमको अच्छा अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है. ट्रीटमेंट गुडविल के ट्रीटमेंट और कैपिटल का ट्रीटमेंट अच्छे तरह से समझ में आ जाता है. तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो एग्जाम में मत बनाओ, बिकॉज अननेसेसरी आपका टाइम जाएगा. राइट. सो ये एग्जाम में मत बनाना. अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको सिर्फ 3 अकाउंट्स बनाने हैं, 2 अकाउंट्स बनाने हैं. दिस वन
Need to prepare first revaluation account, second partners capital account, and third is balance sheet, right? So let's begin. Creditors 60,000. Creditors will go to balance sheet. We'll leave few lines from the top in liability side to record capital. Creditors 60,000. Next, capital Sahil Nikhil 81 lakh. It will be balance brought down. Amount is 81 lakh. Okay, here it will be dash. Furniture. Here also we are having furniture. Building is also here. Debtors. Okay, fine. Is there closing stock? No. तो स्टूडेंट सी these three items are having adjustment. तो इसको जब भी आप पोस्ट करेंगे न्यू बैलेंस शीट में, इसके लिए वन वन लाइन आपको छोड़ने हैं एडजस्टमेंट के लिए. सो फर्नीचर विल रिकॉर्ड इन इनर कॉलम 60,000 here. Furniture, how much? 60,000 inner column में, because adjustment is there. Building inner column 72,000. Building, we'll check the amount once again. 72,000. Leave a line. Next is debtors 40,000 inner column. Debtors 40,000 inner column. Closing stock outer column, because no adjustment is there. Closing stock 48,000. So I'll record here. Closing stock 48,000. Then cash in hand 20,000. Cash in hand 20,000. Okay, so we have posted everything from old balance sheet. We'll begin with adjustment. Varad was to pay rupees 1 lakh for his share of goodwill. So Varad ने 1 लाख पे किया है. तो सबसे पहले कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू वरद्स कैपिटल अकाउंट. राइट, कितना वरद ने कैपिटल लाया है 1 लाख. राइट, वरद ने कैपिटल लाया 1 लाख. So first effect we have given over here. We'll give second effect to Varad's capital account और यहाँ पर will write by cash और bank account. Okay, right here 1 lakh. Two effects are done. First effect over here cash account debit side because cash आया है, और second effect capital account credit side done. Next adjustment, उसने गुडविल भी लाया है 1 लाख रुपीस का. ओके, तो यहाँ पर बोला ही वॉज ऑल्सो टू पे. पे मतलब उसने कैश में लाया है. सो इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं. सी गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पर आप लिखेंगे टू
क्रेडिट साइड नहीं है, पहले इसमें लिखो कैश में, क्योंकि कैश में गुडविल आया ना, तो यहाँ पे लिखो गुडविल अकाउंट। कितना लाया गुडविल? 40,000। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर आ गया, कैश में गुडविल आया तो कैश अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट। सेकंड इफेक्ट यहाँ पे गुडविल का क्रेडिट में डाल दो बाय कैश और बैंक अकाउंट। ओके, अमाउंट विल बी 40,000, राइट। अब इसको क्या करना है, गुडविल के लिए कुछ नहीं बोला है। ओके, गुडविल के साथ क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, कुछ नहीं बोला है। जब भी ऐसा केस आता है तो आप क्या समझेंगे, गुडविल को रिटेन करना है। क्या करना है? रिटेन करना है। अब रिटेन में एंट्री सबसे पहली आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुडविल अकाउंट। ओके, अब गुडविल है ना 1 लाख रुपीज है। ये 1 लाख रुपीज पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना है? देखो 3:2 है पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, तो ये डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। गुडविल का अमाउंट 1 लाख नहीं है, गुडविल का अमाउंट 40,000 है, इंटू 3/5। तो ओल्ड रेशियो में वी आर डिवाइडिंग गुडविल। अब सेकेंड पार्टनर को भी कितना जाएगा, 40,000 में से कितना जाएगा, इंटू 3/5 जाएगा। ओके, एंड total of this should be 40,000 and here will be dash। हम लोग गुडविल न्यू पार्टनर को नहीं देंगे। अब ये गुडविल का सेकेंड इफेक्ट हम लोग देंगे गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में, अच्छा ये हम लोग रिनेम कर देते हैं जरा। ओके, चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, पहला साहिल है, राइट। सो साहिल और निखिल इतना है 24 और 16, 24,000। वैसे आपको ये अकाउंट में मार्क्स मिलने वाला नहीं है, वो तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, डन। टू इफेक्ट्स। अब देखो यहाँ पर गुडविल अकाउंट टैली हो जाता है और टैली होना ही चाहिए। सिर्फ एक केस में गुडविल अकाउंट टैली नहीं होगा, वेन एवर गुडविल इज रेज्ड इज गिवन। जब भी गुडविल रेज किया है ऐसा दिया होगा तो गुडविल अकाउंट टैली नहीं होगा। और इसका टैली करेंगे, यहाँ पर आएगा बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, तो ये बैलेंस कैरिड डाउन आप डालेंगे बैलेंस शीट में। कब? जब क्वेश्चन में रेज्ड वर्ड बोला है, राइट। अब ये जो आपने एंट्री किया है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कंपलसरी एंट्री। गुडविल का कुछ भी केस आने दो, आपको कंपलसरी एक इफेक्ट यहाँ पर देना ही देना है। ओके, सो बाकी सब तो नॉर्मल है, सिर्फ गुडविल का आपको यहाँ पे देखना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, दिस इज information is given to us. Now see, assets are revalued. Building has been valued rupees 1 lakh. We'll write that amount rupees 1 lakh in outer column। ये revalued हो गया है ना, तो हम लोग ये अमाउंट outer column में लिखेंगे। अब देखो गुडविल बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? पहले 72,000 था और अभी 1 लाख हो गया है, तो क्या हो गया गुडविल? बिल्डिंग क्या हो गया है? बिल्डिंग इंक्रीज हो गया है। और कितना इंक्रीज हो गया है? बिल्डिंग इंक्रीज हो गया है, अभी देखो अभी यहाँ पर मालूम पड़ेगा। बिल्डिंग इंक्रीज हो गया है बाय 28,000, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एड एप्रिसिएशन। हाँ, appreciation है, so building is appreciated, that is good for us, will be written on credit side because it is good for us. Building is appreciated, that is benefit to the business. So I'll write here by building. We'll check next item, furniture 48,000. That 48,000 amount will be written here in outer column 48,000. Now what happened here in this case, whether the asset is increased or decreased?
सो प्रीवियसली इट वाज 60,000 एंड नाउ इट इज 48,000, तो क्या हो गया है, फर्नीचर इज डिक्रीज्ड. हाउ मच इज डिक्रीज्ड, लेट्स check the value. See, it is decreased by 12,000. So I'll less, if it is decreased, less depreciation. तो जितना वैल्यू डेप्रिसिएट डिक्रीज हो गया हम लोग उसको कंसिडर करेंगे डेप्रिसिएशन, which is loss to the business. So I'll write here furniture to furniture. Okay, डन. टू इफेक्ट्स आर डन. रिमेंबर आपको एवरी आइटम का टू इफेक्ट्स देना है ध्यान से, केयरफुली, अदरवाइज योर सम वोंट बी टैली. डेटर्स 38,000 हो गया है. हियर इज द डेटर 38,000 विल राइट इन ऑर्डर कॉलम. अब देखो डेटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया है. पहले 40,000 था, अभी 38,000 है तो डिक्रीज हो गया है. कितना डिक्रीज हो गया है, 2,000, राइट. नो नीड टू कैलकुलेट. 2,000. अब व्हाट विल वी कंसिडर दैट, विल कंसिडर दैट. अच्छा डिक्रीज हो गया तो लेस, इंक्रीज हो जाएगा तो एसेट. हम लोग इस डिक्रीज अमाउंट को कंसिडर करेंगे आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, विच इज लॉस टू द बिजनेस, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. वी हैव डन टू इफेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स. और ये तो शो कर रहा है कि बैड डेट हो सकता है. अच्छा ये जो है ना यहाँ पर इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स हो सकता है, मतलब प्रोविजन. तो हमने प्रोविजन ही किया है ना, यहाँ पर हमने आरडीडी किया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन ही है. अभी क्या यहाँ पर बोला, इट वाज फाउंड दैट द लायबिलिटी, तो मैंने आपको बताया था ये करंट ईयर का लायबिलिटी यहाँ पे दिया है इन मार्च 2017, बट ये रिकॉर्ड कभी हुआ है, ये रिकॉर्ड हुआ है टू 2 अप्रैल 2017, मतलब नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड हो गया है. हमको नेक्स्ट ईयर से लेना देना नहीं है. हमारा मेन कंसर्न है विल बिगिन. तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो कि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. अब उसका इफेक्ट क्या जाएगा, देखो सबसे पहले वो न्यू लायबिलिटी अकर हुई है विच विल बी लॉस टू बिजनेस. यहाँ पर आप लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. हाँ कितना है, 3,000. एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी हियर, वही चीज लिखेंगे. ओके डन. सो नाउ देखो सब कुछ हो गया है. अब हमको क्लोज करने हैं अकाउंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्लोज दिस अकाउंट. टोटल ऑफ दिस इज 17,000. सो दिस विल बी हायर and whatever side is higher, no, whatever amount is higher, that will be written on both the side in this way. तो इसका टोटल कितना था ये हम लोग चेक कर लेते हैं. 17,000 है. सो बैलेंस विल अपीयर ओवर हियर 28,000 माइनस 17,000. वी आर गेटिंग 11,000, राइट. अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर I'll write over here two partners capital account, right. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फर्स्ट पार्टनर इज साहिल. सिर्फ हम लोग यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का ही नाम लिखेंगे, निखिल. ओके अब ये प्रॉफिट है, हाँ ये क्रेडिट साइड का हायर था ना, तो प्रॉफिट है ये. हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर में. कैसे डिवाइड करेंगे, 11,000 इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 इंटू 3/5, 6,600. और इसके लिए भी वही फॉर्मूला होगा, 11,000 इंटू 2/5. इंटू 2. ओके एंड टोटल ऑफ दिस शुड बी 11,000, इतना होना चाहिए. नाउ दिस प्रॉफिट विल बी टेकन टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पर डेबिट है ना,
तो अनदर वे में सेकेंड लेजर में वो क्रेडिट हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,600 एंड 4,400। और न्यू पार्टनर को तो ये तो न्यू पार्टनर है, इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं देंगे। नाउ विल क्लोज दिस अकाउंट। हियर इट विल बी 1 लाख और यहाँ पर हो जाएगा 1,20,400। यहाँ पर हो जाएगा 1,04,000। ओके, ये 1,10,600 होगा। हम्म, अब ये दोनों अमाउंट आपको लेना है यहाँ पे क्रेडिट में। एंड सिंस देर इज नो अमाउंट, since there is no amount on debit side, so entire will be balance carried down। ये पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विल राइट नेम ऑफ ऑल थ्री पार्टनर, साहिल, निखिल और वरद। विल टेक दिस अमाउंट। ओके, अब हम लोग इसका टोटल करेंगे 3,94,000। 3,54,000 आ रहा है। मतलब कहाँ पर क्या कम पड़ रहा है, ये देखो हमने कैश अकाउंट को क्लोज नहीं किया है, तो हम लोग इसका भी क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो टैली हो जाएगा, राइट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं बैलेंस वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं लिखता हूँ बिकॉज दिस इज वर्किंग नोट। एक यहाँ पे थोड़ा से काम रह गया है स्टूडेंट, ये देखो ये जो कैश इन हैंड है ना, यहाँ पे नहीं लेकर हम लोग कैश इन हैंड क्या क्या कर लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20,000। अब इसका टोटल कितना आ गया, 1,60,000। 1,60,000 ये भी आ जाएगा 1,60,000। तो बैलेंस कितना आ गया, 1,60,000 आ गया। स्टूडेंट ये सेम चीज को यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाकर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी इसका वर्किंग दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस 20,000 यू हैव रिटन इन इनर कॉलम, राइट। यहाँ पर ओके, तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे आप, कैपिटल। वरद, वरद का नाम लिख दो। वरद कितना, 1 लाख। और वापस से गुडविल भी यहाँ पर ऐड करना है। गुडविल कितना, गुडविल है 40,000। अब इसका हम लोग ग्रैंड टोटल ले लेंगे 1,60,000 वो है। सो दिस इज दी अनदर वे। जरूरी नहीं है आप कैश अकाउंट बनाओ, सेम ट्रीटमेंट आप यहाँ पर भी एड लेस कर सकते हैं। अब देखो इसका टोटल कितना आता है, 3,94,000 आ जाता है। आप लोग मोबाइल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से अमाउंट देखकर विल बी गेटिंग एग्जैक्ट अमाउंट।
इतना ही आपको अमाउंट मिलेगा इसका टोटल, राइट। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, कभी कभी ये कैश अकाउंट का टोटल लेना रह जाता है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। और वैसे भी स्टूडेंट, अगर आपका सम करेक्ट है तो बैलेंस शीट में आपको पता चल जाएगा आपने कौन से अमाउंट नहीं लिए हैं। अगर कभी भी बैलेंस शीट आपका टैली नहीं होता है तो आप लायबिलिटी और एसेट का डिफरेंस देखेंगे। You will check the difference between asset and liability and you see how much amount, how much difference are you getting, and जो difference मिलेगा आप चेक करो कि कौन सा आइटम मिस आउट हो गया आपसे, right? So in this way we have solved admission of partner sum. I hope you all must have understood this sum. And now thank you very much for today's class, for watching this video. Thank you once again.